Excuse me, sir. Sir, I just need a bit of your time. Good morning, sir. May I know your good name, please? पंकज कुमार. So, Mr. Pankaj, how are you doing today? फाइन, नाइस. Okay, so before I introduce myself, I would like to wish you and your family a very happy and a prosperous Raksha Bandhan. थैंक यू, सेम टू यू. Okay. So, sir, my name is Shivam Chaudhary and I am a student of Shiv Nadar University. I am pursuing my MBA there. So, I just observed that you had purchased some Fortune refined oil from this store. Am I correct? Yes, of course. So sir, I would like to add on to that with respect to our course curriculum, so we are doing a course on consumer behavior. So as a part of that course, we have to conduct an in-depth interview with you with the object of understanding the consumer motivation behind your purchase. So we would like to inform you, we would like to seek your consent at first with regard to the same. So with respect to the consent, we would like to tell you that this interview will strictly be recorded for academic purposes, and it will be, and all the information that you give will be used will be kept confidential with us. So are you comfortable showing your face on camera? Yes, no issue. Okay, sir. So whenever you feel uncomfortable, you can let us know, because we have a strict policy as such. If you are not comfortable with anything, we will bleep out that portion, and we will also hide your face. No issue. Okay. So sir, where do you want us to conduct this interview? Because this place is a bit intimidating, and the interview won't serve its purpose if we do it here. Yes, you can come at my home. Okay, sir. So where do you live, sir? I live in View Sites. Okay, sir. So it's just next door only. So can I join you now, sir? Okay. आप आ जाओ. Good afternoon, sir. First of all, I would like to thank you for giving me this opportunity to interview you. It's been a long day. आपसे पहले कम से कम 5 से 6 लोगों को मैंने अप्रोच करा था, but all of them declined. So I would like to thank you for this wonderful opportunity. So is there anything that you would like to say as of now? Very good afternoon. आज मैं शॉप पे गया था, वहाँ पे मैं परचेज कर रहा था. एक्चुअली आज क्या है कि रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो आज हमारे ऑफिस की भी छुट्टी थी, तो घर में कुछ लोगों ने कहा कि कुछ सामान वगैरह परचेज करके ले आओ इस मंथ के लिए. तो मैं जनरली लामोड़ स्टोर पे ही परचेज करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे हमारे को सब कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं. तो वहीं पे आपने मुझसे रिक्वेस्ट किया था. आपका नाम क्या है? थोड़ा सा मैं भूल रहा था. सर मेरा नाम शिवम चौधरी है, सर. ओके. आप कहाँ रहते हैं फरीदाबाद में? सर मैं रहता हूँ सेक्टर 15 में. ओके, ग्रेट. अच्छा, अच्छी बात है. तो आप थोड़ा सा अपने बारे में मुझे एक बात बताएंगे, ताकि फिर हम आगे और अच्छे से बातें कर सकें. हाँ जी सर. सो आप मेरा नाम जानते ही हैं, मेरा नाम शिवम चौधरी है. सो सर मैं 24 years old right now, और अभी आई हैव बीन बॉर्न एंड बॉट अप एट फरीदाबाद ओनली. मैंने अपनी स्कूलिंग DPS फरीदाबाद से करी थी. उसके बाद मैंने अंडर ग्रेजुएट में लॉ की डिग्री परस्यू करी थी फ्रॉम सिम्बियोसिस लॉ स्कूल हैदराबाद. तो 2020 में वो ग्रेजुएशन मेरा हो गया था. उसके बाद मैंने क्लोज टू 1 year वर्क करा था एट अ लॉ फर्म, एंड देन मैंने डिसाइड करा कि आई नीड टू अपस्किल माई सेल्फ. तो मैंने एक MBA डिग्री परस्यू करी है. ओके, ग्रेट. बहुत अच्छा है. मतलब आपने पहले लॉ किया, उसके बाद आप नाउ यू आर डूइंग मैनेजमेंट. ओके, वेरी. इन विच स्ट्रीम? सर डिग्री तो वैसे हमें जनरल MBA की मिलेगी, बट स्पेशलाइजेशन हमारा एक मेजर एंड माइनर के उसमें डिवाइडेड है. सो माय मेजर इज़ इन सेल्स एंड मार्केटिंग, और उसका ये पार्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर कोर्स है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था. एंड माइनर में अभी आई एम थिंकिंग ऑफ ऑपरेशंस, क्योंकि मेरे को सप्लाई चेन वगैरह में काफ़ी इंटरेस्ट है. ओके, वेरी गुड. अभी तो इसका अच्छा भी चल रहा है. ऑपरेशन मैनेजमेंट वगैरह में बहुत अच्छी कंपनियां भी आ रही हैं, और आने वाला समय भी इसी का है. तो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी. वेरी गुड, और बहुत अच्छा. और मैनी थैंक्स फॉर कमिंग इन माय होम. और आप बताइए, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं जिसके आपने मुझसे समय लिया था? सर इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपके बारे में भी कुछ जानना चाहूँगा, लाइक आप क्या करते हैं एंड ऑल. शिवम, ऐसा है कि मेरा नाम पंकज कुमार है, और मैं CA प्रोफेशनल हूँ, और यहीं पर अभी ग्रेटर फरीदाबाद में मेरी अपनी
वहाँ पे ऑफिस बनी हुई है, मेरे अंडर में वहाँ पे 8-10 स्टाफ काम करते हैं। मैं डिफरेंट, मेरे पास ऑलमोस्ट 10 to 15 अच्छी कंपनियाँ हैं जिनका मैं ऑडिट करता हूँ। इसके अलावा मेरी अपनी प्रैक्टिस भी है और मैं ऐसे बिलोंग करता हूँ बिहार के मुजफ्फरपुर शहर से, और मेरे पेरेंट्स वहीं रहते हैं, और मैं लास्ट 16 ईयर से फरीदाबाद में ही रह रहा हूँ। एक्चुअली मैंने यहाँ पे अपने करियर की शुरुआत आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय सीए, मैंने कुछ दिन यहाँ पे जॉब करी थी, एक लीडिंग ब्रांड है वो सीए फर्म की दिल्ली में। आफ्टर डैट 3 इयर्स के बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ अपना ही करना चाहिए, तो मैंने कुछ अपने सीनियर्स की भी हेल्प ली और उनसे लेके फिर मैंने अपना प्रैक्टिस शुरू किया। प्रैक्टिस शुरू करने के बाद शुरुआत में मेरे पास उतने बड़े ब्रांड्स नहीं थे, बिकॉज आई वाज मतलब बहुत मेरा नाम अच्छा उसमें वो था नहीं। फिर धीरे धीरे मैं डिफरेंट कंपनीज़ में गया, वहाँ पे अपना मैंने वो दिखाया, प्रोफाइल दिखाया। तो आज के डेट में 15 अच्छी कंपनियों का ऑडिट मेरे पास है और मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। और फैमिलीज़ में मेरी वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं। Both sons are studying in St. Peter's Convent, one in class 8 and second one in class 3। ये मेरे बारे में प्रोफाइल है। अब आप जो पूछना आ गया पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। इंटरेस्टिंग सर, आपने बात करी सीए की, तो लॉ में भी ऐसा ही होता है, शुरू में आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, काम नहीं मिलता, एंड देन एज इन आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आपको काम मिलता है। तो सर आपने बात करी थी कि आप प्रैक्टिस करते हो, तो इज़ देयर एनी स्पेसिफिक फील्ड कि आप सब कुछ करते हो लाइक? जनरली क्या होता है कि मेरे पास 15 जो कंपनीज़ हैं उनका पूरा बैलेंस शीट्स है, उसका ऑडिट मैं करता हूँ, उनका जीएसटी फाइल मैं करता हूँ, उनका जो भी टैक्स की लायबिलिटीज़ है या जो उनको इश्यूज़ वगैरह आते हैं वो सब मैं देखता हूँ। इसके अलावा मेरे पास कुछ प्रीमियम कस्टमर्स हैं जिनसे मेरे पुराने संबंध बने हुए हैं, तो उनका मैं ITR भी फाइल करता हूँ, बट उतना नहीं करता हूँ। बट जो हमारे प्रीमियम कस्टमर्स हैं, जो जिनकी अच्छी कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज वगैरह हैं, तो उनका पर्सनल अकाउंट का भी मैं ऑडिट करके फिर उनका मैं ITR फाइल करता हूँ। इंटरेस्टिंग, तो मतलब काफ़ी अच्छा कर रहे हो। तो आप कंसल्टेशन भी करते हो लाइक फाइनेंशियल कंसल्टेशन एंड ऑल? अभी उस रिगार्डिंग मैंने अभी उतना देखा नहीं है, बट इन फ्यूचर मेरे प्लान में, एजेंडा में है कि मेरा काम और बढ़ेगा तो मैं वो भी करूँगा। एंड ये काम के अलावा लाइक व्हाट आर योर हॉबीज़, लाइक स्पोर्ट्स वगैरह कुछ देखना पसंद करते हो आप? एक्चुअली में हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि टाइम तो उतना में नहीं मिल पाता है मेरे को, बिकॉज़ सुबह मैं 9 बजे ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ और 7 to 8 में आता हूँ। तो मेरी हॉबी है थोड़ा सा मूवी देखने की, और टीवी चैनल्स पे थोड़े जो न्यूज़ वगैरह आते हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो आपको पता होगा कि बिहार के लोगों को थोड़ा सा पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो मूवीज़ भी तो सैटरडे संडे क्योंकि उस दिन हमारा ऑफिस बंद रहता है, उस दिन देख लेता हूँ। बट नाइट में आफ्टर कमिंग फ्रॉम ऑफिस आई यूज़ टू वॉच द न्यूज़ चैनल्स एटलीस्ट, और उसमें खासकर पॉलिटिकल न्यूज़ में ज़्यादा देखता हूँ मैं। ओके, इंटरेस्टिंग। सो मैं जानना चाहता हूँ कि बिहार में अभी काफ़ी सारा पॉलिटिकल सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है विद नीतीश कुमार रिज़ाइनिंग, तो आपका उसके बारे में क्या विचार रहेगा? शिवम, नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली में आपको पता है कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो मैं बाय बॉर्न वहीं रहा हूँ, और 1999 में आई हैव शिफ्टेड इन दिल्ली। तो जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो उस समय वहाँ पे लालू यादव की सरकार थी। तो लालू यादव की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा वहाँ पे दिक्कत थी, मुश्किलें थी, प्रॉब्लम्स थे। वो लोग हेल्प नहीं करते थे, सिर्फ दे आर ओनली देयर फॉर मेकिंग मनी। तो और बहुत ज़्यादा बिहार में करप्शन भी हो गया था, तो उस वजह से लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान भी थे, बदमाशी भी थी, लोग वहाँ पे खुल की ज़िंदगी नहीं जी पाते थे। और वहाँ पे मेन था कि स्कूलिंग, बेसिक स्कूल आपका हो गया, इंफ्रा हो गया, उसकी बहुत दिक्कत थी। तो आफ्टर डैट, आफ्टर 15 ईयर्स के बाद जो एक बिहार में लोगों को लगा कि ये 15 साल से यहाँ पे लालू यादव उनकी फैमिली है, बट दे आर डूइंग नथिंग। वो लोग कंपेयर करते थे अदर स्टेट से, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट थी, बट बिहार में कुछ नहीं हो रहा था। तो वहाँ पे जब चुनाव हुआ तो लोगों ने कहा कि इस बार चेंज करते हैं, तो लोगों में थोड़ी सी जागरूकता आई थी।
और मीडिया को भी लोग देखते थे कि और जगह क्या हो रहा है, तो उन लोगों ने वहाँ पे फिर एक तरफा वोटिंग किया और नीतीश कुमार को वो लोग लेके आए थे। अनडाउटली व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई थी कि उस समय एकदम से संभालना मुश्किल था, बट 5 साल में जो नीतीश कुमार ने काम किया वहाँ पर, वो लोगों को लगा कि उन्होंने अपना लास्ट 15 ईयर्स देखा तो लगा कि बहुत कुछ चेंज हो रहा है, बट इसको अभी टाइम लगेगा पूरे ढंग से सही करने में। तो लोगों ने उनको फिर सेकेंड टाइम फिर से एक बार मौका दिया और फिर से वो चुनाव जीत के आए। 10 साल में अनडाउटली उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, बिहार को विकास तक लेके गए। और न्यूज़ में ये आया भी कि बिहार को बिल्कुल चेंज कर दिया नीतीश कुमार ने, बदमाशी ख़त्म हो गई, व्यवस्था सही हो गई, पढ़ाई लिखाई सही हो गया, इंफ्रा वहाँ पे बढ़ गए। तो हमें जो पहले अपने आप को बिहारी बोलने में शर्म आती थी, अब उसने हमारा सर ऊंचा करवाया। उसके बाद क्या हुआ कि जब सेंट्रल में उस समय यूपीए की गवर्नमेंट थी, तो आफ्टर यूपीए की गवर्नमेंट के बाद फिर मोदी साहब आए तो उस समय उनको थोड़ा सा उनका पर्टिकुलर ईगो क्लैश कर गया कि उनकी मतलब मेरे से आगे कैसे ये जा सकते हैं। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा एक गलती बीच में कर दी कि उन्होंने लालू यादव की पार्टी से उन्होंने हाथ मिला लिया। बट क्या हुआ कि जब 1 साल तक ही वो महागठबंधन की सरकार चली और उसके बाद क्या हुआ कि उनको लगा कि अब तो लालू यादव के बच्चे इनको कुछ करने नहीं देते थे। फिर उनको लगा कि मैं सिर्फ एक मतलब एज ए टॉय यहाँ पे काम कर रहा हूँ, कठपुतली जिसको आप बोल सकते हैं। फिर उन्होंने वापस आके बीजेपी से हाथ मिला लिया। बहुत अच्छा काम हो रहा था बिहार में, बट एज़ पर माई नॉलेज उनको ये लग रहा था नीतीश कुमार को कि मैं 17 ईयर्स से चीफ मिनिस्टर हूँ और मेरी एज भी हो गई, तो मुझे कोई अब और सडनली रामनाथ कोविंद और वाइस प्रेसिडेंट का भी टर्म पूरा हो रहा था, तो उनको कहीं से खबर मिली कि आई वुड बी द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट का हो गया, द्रौपदी मुर्मू जी हमारी जो भारत की बन गई प्रेसिडेंट, तो उनको लगा कि मुझे वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे। बट वाइस प्रेसिडेंट में भी इनका नाम अनाउंस नहीं हुआ, तो वो कंप्लीट होपलेस हो गए और उन्होंने फिर आरजेडी से अपना हाथ मिला लिया। बट ये बहुत ही बुरा हुआ, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। इंटरेस्टिंग, आपने बहुत अच्छे से इसको समराइज़ करा है। एंड मैं थोड़ा सा अपना विचारधारा देना चाहूँगा कि पॉलिटिक्स गेम ही ऐसा होता है ना, कभी आप किसी के साथ होते हो तो कभी एकदम से आप साइड चेंज कर लेते हो। तो एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आपको हम कभी पॉलिटिक्स में देख सकते हैं इन द नियर फ्यूचर? एक्चुअली मैं पॉलिटिक्स में जाने का तो एक्चुअली एज ए बिहारी मेरे खून में तो है ही कि पॉलिटिक्स में, बट क्या है ना कि अब उसमें बहुत टाइम देना पड़ता है और पीछे से अगर कोई बैकअप हो, आदमी के पास फाइनेंशियल बैकअप हो, तो आदमी स्टेप ले भी सकता है। और वी आर वर्किंग पीपल वी डोंट हैव एक्स्ट्रा मनी कि हम इस पर अपना टाइम स्पेंड कर सकें। बट ये है कि अगर कल को कुछ ऐसा हुआ तो आई कैन ज्वाइन। नाइस। और आपने बात करी थी कि आपको मूवीज़ भी बहुत पसंद है। एंड एक और क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ऑड लगेगा, बट क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप कभी कोई मूवी प्रोड्यूस करें ऑन पॉलिटिक्स, स्पेशली ऑन बिहार पॉलिटिक्स? हाँ बिल्कुल, आपने सही बात कहा। इस टाइप की मूवीज़ मुझे पसंद भी है। आपने बीच में एक मैं फिल्म का नाम भूल रहा हूँ, अजय देवगन की एक फिल्म आई थी ना, हाँ राजनीति वगैरह थी और भी थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और अगर मुझे ऐसा मौका मिला तो आई कैन बेटर प्रोड्यूस, अच्छा लगे। नाइस। तो महीने में कितनी बार एडिबल ऑयल खरीदते हैं? जनरली आपको शिवम जी मैंने ये बताया कि मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है, और तो मैंने घर में ऐसा प्लान कर रखा है कि हम अपने घर का राशन एक बार ही लेके आते हैं, क्योंकि मैं बार बार लेके आऊँ, कभी ये ले आऊँ कभी वो ले आऊँ। और तो मैं अपना सामान महीने में एक बार ही खरीदता हूँ, तो उसमें लगभग 3 to 4 लीटर्स ईटेबल ऑयल हमारे घर में यूज़ होता है। नाइस। तो मतलब आप बल्क परचेज करते हैं। एंड आपने बोला कि आप प्लानिंग करते हो, तो कैन यू एलैबोरेट लाइक किस टाइप की प्लानिंग रहती है जब आप राशन डिसाइड करते हो अपने घर का? यस,
नाइस क्वेश्चन शिवम। आपको जब भी मैं घर पे जनरली मैं वीकेंड पे या जिस दिन हमारा ऑफिस बंद रहता है उसके एक दिन पहले मैं अपनी वाइफ से, चूँकि घर की तो मैनेजर वही है और माय वाइफ इज सी इज हाउस वाइफ, तो उनको बेटर पता होता है। तो मैं आफ्टर टेकिंग द डिनर मैं उनसे पूरा पूछ लेता हूँ कि टुमारो वी आर प्लानिंग फॉर द शॉपिंग फॉर द राशंस, तो आप हमें एक लिस्ट बना दो। तो जनरली क्या होता है ना कि हम एक ऐसा स्टोर प्रेफर करते हैं कि जहाँ पे घर के लिए सारे फूड, कन्फेक्शनरी आइटम, साबुन, सर्फ और जो कॉस्मेटिक्स आइटम है सब कुछ मिल जाए। तो वो मुझे एक लिस्ट बना के दे देती हैं। प्लस घर में छोटे बच्चे हैं, उनको भी कुछ अगर सामान चाहिए होता है स्टेशनरी वगैरह का, तो एक पूरा वर्किंग बना के उसका लिस्ट बना देती हैं कि पूरे महीने में हमारे घर में क्या क्या सामान आएगा और उसकी क्वांटिटी वो मेंशन कर देती हैं। प्लस मेरे जो अपने नीड्स होते हैं, लाइक जो मेंस के नीड के जो सामान होते हैं, सेविंग ब्रश हो गया, ये हो गया, वो सभी पूछ लेती हैं और उसके बाद फिर वो लिस्ट बना लेती हैं और वो मुझे लिस्ट दे देती हैं। फिर उसके बाद मैं अभी चूँकि हमारे घर के बगल में ही स्टोर है, लामोड़ स्टोर है, आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्राउड है और वो सारी वैरायटी रखते हैं। इवन आपका जो सारे फूड्स हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया, स्टेशनरी आइटम हो गया, मतलब सिर्फ एक जो स्कूल का कोर्स मटेरियल बुक्स के अलावा यहाँ पे यू कैन टेक एवरीथिंग। तो वो फिर उसके बाद मैं आके यहाँ पे और मैं 1 घंटे 2 घंटे लगा के, ताकि मुझे बार बार मार्केट नहीं जाना पड़े, तो मैं यहीं से सामान ले लेता हूँ। आपने इस क्वेश्चन का बहुत अच्छे से मतलब एक्सप्लेनेशन दिया है, थैंक यू सो मच। एंड मैंने देखा था स्टोर का एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा था एंड दे हैड अ लॉट ऑफ वैरायटी। तो अब आई वुड आल्सो लाइक टू नो कि आप मोटिवेशन क्या है, मतलब आप क्यों ख़रीदते हो, मतलब ऐसा क्या है कि आप जो है इतना इंटरेस्ट लेते हो एडिबल ऑयल में, एंड व्हाट इज़ देयर एनी टाइप ऑफ एडिबल ऑयल यू प्रेफर ओवर द अदर्स? एक्चुअली में शिवम ऐसा है ना कि मैं आपको बता दूं कि मैं जैसे अपने ऑफिस में रहता हूं तो मैं यूज़ टू रीड द न्यूज़पेपर्स और मीडिया भी, मैं भी न्यूज़ पे, आपको पता कि मैं न्यूज़ देखना मेरा काफ़ी अच्छा मेरा चॉइस है। तो मैं देखता हूँ ना कि जब भी फेस्टिवल आता है या कुछ भी आता है, और फेस्टिवल्स के अलावा ना एडिबल ऑयल्स वगैरह में बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी है और जिसका जो वो नकली तेल खाने के बाद क्या होता है कि आपके लीवर और सब चीज़ को, ऑर्गेन को, मल्टी ऑर्गेन फेल करता है, बट नॉट इन शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में जाके इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। और आज के समय में, भाग दौड़ के समय में, हेल्थ इज़ वेल्थ। आपका हेल्थ सही नहीं है तो आप अच्छा, मतलब अच्छे से काम नहीं कर सकते हो। आपका हेल्थ ख़राब है तो आपकी सोच अच्छी नहीं होगी, आप बढ़िया से काम नहीं कर पाओगे। तो मैं खासकर फूड में कहीं भी जाके अपने हेल्थ के मामले में जो भी चीज़ अच्छी होती है मैं उसमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। तो मैं अक्सर हाँ देखता हूँ कि कभी यहाँ पे छापा पड़ रहा है, वहाँ पे छापा पड़ रहा है, ये नकली तेल का गोदाम पकड़ा गया, ये पकड़ा गया। तो फिर मैंने कहा कि आज की डेट में अगर मैं कोई एक ब्रांड पे तो जाके मैं काम करूँगा, मैं जिस पे जो घर में यूज़ करूँ। तो अडानी इज़ ए वेरी गुड कंपनी और अच्छा है इनका है और ये बड़े बिजनेस हाउस है, तो और इनका जो CSR भी अच्छा करते हैं। तो मुझे ये लगा कि इतनी बड़ी कंपनी जो है ऐसा काम नहीं कर सकती। एक चीज़ और, इसके अलावा क्या होता है कि ये भी बातें मुझे पता है कि जो सामान अच्छा बिकता है उसकी डुप्लीकेसी भी होती है। तो क्या होता है ना कि जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है शिवम, कि जो बड़े स्टोर्स होते हैं, लाइक आपका मॉडर्न फॉर्मेट स्टोर्स हो गए, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो गया, वो कंपनी से कहीं कहीं डायरेक्ट लिंक्ड भी होते हैं या फिर जो कंपनी के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से ही माल लेते हैं। बिकॉज वो मैंने कई बार देखा है कि छोटी शॉप्स पे मैं अगर जाता हूँ तो वो लोग कच्ची पर्चे पे माल ले लेते हैं, जिस पे कहीं से भी डिस्ट्रीब्यूटर का नाम, GST नंबर, फ़ोन नंबर नहीं होता है। बट बड़े स्टोर्स में क्या होता है कि वो बिल पे ही माल लेते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर माल दे रहा है तो वो अच्छा माल दे रहा है और असली ही माल दे रहा होगा। तो इसीलिए मैं बड़े स्टोर से ही सामान खरीदना प्रेफर करता हूँ। इंटरेस्टिंग, आपने फिर से एक बार जता दिया कि आपकी मार्केट की नॉलेज बहुत अच्छी है। एंड मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में यही पूछने वाला था डुप्लीकेसी के रिगार्डिंग, बट आपने उसको बहुत अच्छे से आंसर करा है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि अडानी से पहले आपने कोई और ऐसा कोई ब्रांड है जिसको यूज़ करा हो?
एक्चुअली में क्या है कि आपको पता है कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। तो पहले एक्चुअली में हम लोग के यहाँ लोकल तेल, मतलब हमारे पेरेंट्स जो थे वो घर में ही, मतलब हमारी गांव में खेती भी होती थी, तो वहाँ से वो सरसों, जिसको यहाँ बोलते हैं, उसको हमारे बिहार में तोड़ी बोलते हैं, तो तोड़ी की खेती हमारे यहाँ होती है। तो फादर वहाँ से तोड़ी ले आते थे। और आपने शायद फरीदाबाद में नाम सुना नहीं होगा, उसको कोल्हू बोलते हैं। कोल्हू वर्ड होता है। तो कोल्हू में बेसिकली क्या है कि उसमें आप उनको सरसों दे के आओ, वो उसको तेल निकाल देते हैं। हमारे बिहार में तेल पेरना बोलते हैं उसको। तो तेल पेर के उसका सरसों मशीन में जाती है, वो निकाल देते हैं, तो वो 100% असली ही होता था। तो वहाँ से वो तेल लेके आते थे, मैं उसको यूज़ करता था। बट जब मैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई 12th आई हैव शिफ्टेड टू पटना। पटना से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया पटना यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ पर क्या था कि वो तो हमारी फैसिलिटी ख़त्म हो गई, तो कभी हम घर से भी ले आते थे, बट उतना लाना पॉसिबल नहीं होता था। तो फिर हमें लगा कि अब मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने क्या किया कि उस समय इंडिया में, ये आपको बता रहा हूँ बात 97-98 की, ठीक है, उस समय क्या हुआ, रिफाइंड ऑयल का बहुत तेज़ी से प्रचलन हुआ था। और उस समय लोग क्या था कि पहले जनरली मस्टर्ड ऑयल जो था वो लूज़ ही बिकता था, खासकर हमारे बिहार में। तो पैकेट के अंदर में, बॉक्स के अंदर में, पाउचेज में रिफाइंड आया। तो तब तक क्या लोग जो क्या धीरे धीरे मस्टर्ड ऑयल, चूँकि उस समय पैक्ड नहीं आता था, बहुत कम कंपनियां निकालती थी, तो लोग रिफाइंड ऑयल पे शिफ्ट हो गए। तो जब तक मैंने पटना में पढ़ाई करी और उसके बाद फिर मैं दिल्ली आ गया, फिर मैंने यहाँ पे CA की मैंने तैयारी करी। तो यहाँ पर फिर उन्हीं दिनों एक आर्टिकल आ रहा था कि आफ्टर मैंने 6-7 साल तक मैंने रिफाइंड यूज़ किया, फिर एकदम से आर्टिकल आया कि जो आजकल इंडिया में जॉइंट्स पेन, आर्थराइटिस और जो कि बहुत ज़्यादा जॉइंट लोगों के रिप्लेसमेंट वगैरह हो रहे हैं। तो मैंने इस पे काफ़ी स्टडी किया। तो मैंने देखा कि फिर मेरे 1-2 फ्रेंड्स हैं जो दे आर मेडिकल प्रैक्टिशनर, उनसे भी हमने बात करी। और मेरा एक फ्रेंड भी है, वो मतलब ऑर्थोपेडिक में वो काम करता है, ही इज नाउ इन मेरठ। तो उसको मैंने संडे का दिन था, मैंने उससे ऐसे भी डिस्कस किया कैसे हो क्या हो। यार मैंने कहा बहुत अच्छी सी ये आजकल न्यूज़ आ रही है, क्या चक्कर है रिफाइंड ऑयल से, मतलब। तो उसने कहा कि थोड़ा सा, उसने मुझे एक स्मॉल बताई स्टोरी कि जो आपका घुटना होता है ना, वो बेसिकली वहाँ पे एक लिक्विड होता है, डैट्स मतलब उसको आप यू कैन से मतलब लुब्रिकेंट। तो उस पे दोनों जॉइंट आपके आपस में जो हम चलते हैं तो दोनों ऊपर नीचे करता है। तो वो मतलब एक उस लुब्रिकेंट की वजह से उसमें मतलब आराम से वो स्मूथली चलता रहता है। बट आप जो रिफाइंड खा रहे हैं ना, वो उसको ड्राई कर देता है, ड्राई करता है। तो उस वजह से क्या, जैसे ही वो लुब्रिकेंट ख़त्म होगा तो जो आपके बोन्स हैं वो आपस में घिसने लगते हैं, और उसके चक्कर में लोगों को जॉइंट पेन्स हो रहे हैं। और आप मस्टर्ड ऑयल खाते हो ना, तो वो उस लुब्रिकेंट को ड्राई नहीं होने देता है। तो फिर मैंने 1-2 लोगों से और भी पता किया। उसके बाद सडनली मैंने डिसाइड किया कि आई विल नेवर यूज रिफाइंड। और ऐसे भी आपको पता है कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, हमने मस्टर्ड ऑयल का बहुत यूज़ किया है। जब मैं रिफाइंड में सब्ज़ी खाता था ना, तो मुझे कभी वो टेस्ट नहीं मिला जो मैं अपने घर में मस्टर्ड ऑयल में खाता था। तो नाउ अगेन आई स्टार्टेड मस्टर्ड ऑयल, और फॉर्चून का ही मैं यूज़ करता हूँ। इंटरेस्टिंग। तो आपने पहले तो बात करी थी कि आपने काफ़ी सारी स्टडीज़ करी थी, तो आप बता सकते हैं कि आपने कैसे वो स्टडीज़ कंडक्ट करी थी? मतलब आपने क्या इंटरनेट से डेटा इकट्ठा करा था या आपने अपने फ्रेंड्स को कंसल्ट करा था? इस क्वेश्चन एक्चुअली में क्या है कि उस समय तो इंटरनेट्स वगैरह आ गए थे। मैं अपनी पढ़ाई करता था जब CA की अपना, तो उसमें मेरे को कोर्स मटेरियल वगैरह निकालने के लिए तो मैं जनरली उस समय तो लैपटॉप अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल था, और घर पे भी PC करना। तो जनरली उस समय क्या स्टूडेंट्स जो थे, मैं दिल्ली में था लक्ष्मी नगर में, जहाँ पे सारे CA के लोग तैयारी करते हैं।
तो उस समय हम लोग साइबर कैफ़े में जाया करते थे कोर्स मटेरियल निकाल के। और उन्हीं दिनों मतलब ऑर्कुट वगैरह एक नया आया था फ्रेंड बनाने के लिए, जैसे आजकल फेसबुक है, उन दिनों ऑर्कुट चला करता था। तो ऑर्कुट हम खोलते थे, क्योंकि और कोई इंटरटेनमेंट का साधन था नहीं उस समय। मोबाइल फ़ोन थे बट उस समय इनकमिंग के ही पैसे लगते थे, तो वो तो फ्रेंड से बात करने का और कोई सस्ता साधन नहीं था। तो हम लोग ऑर्कुट में हो गए थे रजिस्टर्ड और आपस में फ्रेंड से चैटिंग करते थे। तो जब हम ऑर्कुट खोलते थे तो कभी कभी उन्हीं दिनों गूगल पे भी न्यूज़ वगैरह आया करता था, क्योंकि मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया और मैं हिंदू पढ़ता था वहाँ पे, तो हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत सारे आर्टिकल आते थे। तो मैं कहा इसका ऑथेंटिक भी कुछ मैं देखूं, तो मैं गूगल पे मैं टाइप करके मैं चेक करता था। तो उसमें बहुत सारे मेरे को न्यूज़ मिले कि हाँ ये सही है कि जब से लोगों ने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कम कर दिया है इंडिया में, जॉइंट पेन्स की समस्या बढ़ती जा रही है। दैट इज़ माई सोर्स। बहुत ही अच्छा आंसर आपने, मतलब एक नॉस्टैल्जिक मेमोरी दिला दी। मेरे को भी याद है कि हम जब छोटे छोटे से होते थे तो साइबर कैफ़े हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। मतलब हम लोगों को ऐसे इंटरनेट वगैरह यूज़ करना होता था कभी, तो हम चुपचाप जाते थे साइबर कैफ़े, या कभी कोई किसी के साथ कोई गेम खेलना होता था। हमारे टाइम पे गेम होती थी काउंटर स्ट्राइक, जैसे आज पबजी हो गई है, अब तो वो वैसे फिलहाल बैंड है। तो हमारे टाइम पे जैसे वो काउंटर स्ट्राइक होती थी, तो हम सब जो है एक साइबर कैफ़े बुक करते थे अलग से, ट्यूशन बंक मार के तो वो सब रहता था। तो आपने बात करी थी टेस्ट की, तो आपने जब से अपना ब्रांड शिफ्ट करा है टू मस्टर्ड ऑयल, तो कैसा टेस्ट आप बता सकते हैं? लाइक कैन यू कंपेयर बिफोर एंड आफ्टर, कैसा रहा है? नहीं देखिए, टेस्ट तो उसका बहुत अच्छा है। जनरली मेरी वाइफ भी बिहार से है, तो 2008 में मेरी मैरिज हुई थी। तब तक मैं मस्टर्ड ऑयल पे आ चुका था। वो बिहार में मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती थी। तो यहाँ पर आके उन्होंने जब मैं उनको यहाँ पे लेके आया, तो हम जब फर्स्ट बार शॉपिंग, पहले तो मैं आपको पता ही है बैचलर था, तो कुछ भी खरीद के छोटा मोटा सामान ले आया। जब शादी हुई तो मुझे लगा कि अब थोड़ा सा प्लान्ड वे में लाइफ को जीना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो मैं बैचलर था, कभी कुछ ले आया कभी कुछ ले आया, कोई प्लानिंग्स लाइफ की नहीं होती थी। बट मुझे लगा कि अब हमारे घर में वाइफ आ गई है, तो हमारे यहाँ गेस्ट भी आएंगे, पेरेंट्स भी आएंगे, और घर में एक जैसे और लोग रहते हैं। मैं अपने फ्रेंड्स जिनकी शादी हो चुकी थी, नेबरहुड से देखते थे कि वो लोग प्लानिंग वे में रोज़ जीते हैं। तो मैंने वाइफ से ये बोला कि अब बताओ अब कैसे करना है, आप अब तो आप ही घर में रहोगे और होम मिनिस्टर आप ही हो। तो फिर उन्होंने ही वहाँ लिस्ट बना के दी। तो सडनली मैंने उनको कुछ फोर्स नहीं किया। मैं कहा देखो, चूँकि अब घर में हम दोनों को इकट्ठे रहना है, तो अब कुछ इनके भी तो हिसाब से मुझे चेंज करना पड़ेगा, और कुछ ये भी चेंज करेंगी। तो जब मैंने उनका पर्चा पढ़ा तो मैंने उनको कहा कि आप पर्चा बनाओ, और वो हम 2 आदमी ही हैं, इसी के हिसाब से 1 मंथ का पर्चा बना लो, और उसके बाद हम चल के इकट्ठे सामान ले आते हैं। तो जब उन्होंने पर्चा बनाया तो फिर मैंने सडनली देखा किसी है रिटेन मस्टर्ड ऑयल। तो मैंने उनसे भी पूछा कि आप मस्टर्ड ऑयल क्यों लिखते हो, आजकल तो रिफाइंड लोग खाते हैं। तो उन्होंने बोला कि घर पे एक्चुअली में हमने 2-3 बार मेरे भी फादर लेके आए थे रिफाइंड ऑयल, बट वो टेस्ट नहीं आया। तो हमने फिर मस्टर्ड ऑयल पे ही, तो मैं कहा आप कौन सा ब्रांड खाते हो? तो बट वो बिहार से बिलोंग करते थे, तो बोले कि हम तो अपना ही तेल खाते हैं, लेकिन आप बताओ आप यहाँ पे कौन सा ब्रांड खाते हो? तो मैंने कहा देखो आज के डेट में 4-5 कंपनियाँ हैं, इसमें डालडा है, फॉर्चून है, बट क्या है एक मतलब बुंगे इंडिया का डालडा है, और बिहार में हमारे धारा का सेल बहुत है मस्टर्ड ऑयल का, बट यहाँ पे दिल्ली में वो उतना अवेलेबल नहीं होता है। तो फिर मैंने कहा कि आप भी, मैं एक बार ला के देखता हूँ, आप उसको खाओ, आपको पसंद पड़ता है तो ठीक है। तो मैं जब सामान लेके आए, उन्होंने खाना बना, तो उन्होंने कहा लिटिल बिट ये सेम है। तो फिर मैं आज तक हमारे घर में वही कंटिन्यू कर रहा है, हमने अभी तक कोई चेंज करने की कोशिश नहीं करी हमने। इंटरेस्टिंग, आपने फिर से एक काफ़ी अच्छा डिटेल्ड इंसाइट दिया है हमें। आपने बात करी थी जैसे टेस्ट और हेल्थ बेनिफिट्स की, तो उसके अलावा कोई ऐसा और एट्रीब्यूट है जो आपको मोटिवेट करता है कि मैं ज़्यादातर मस्टर्ड ऑयल यूज़ करूं? हाँ नाइस। एक्चुअली मैं बता दूं ना कि अगर आप पीछे में जाओगे, अगर आप मतलब एंशिएंट इंडिया में जाओगे, या फिर अगर आप आयुर्वेद में जाओगे, तो हम जब छोटे थे ना,
तो फिर हमारे को कभी कभी जब जुकाम लगता था, सर्दी होती, क्योंकि आपको पता है मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो बिहार में बहुत बारिश होती है, मतलब बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं, वहाँ पे फ्लड भी बहुत आता है, और वहाँ पे जून लास्ट से वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है। तो क्या था कि, और जब छोटे थे तो हम बच्चे थे, थोड़े लापरवाह भी होते थे, स्कूल से आते थे कभी भीग गए, कभी पानी में ऐसे ही भीग गए, तो अक्सर हमें सर्दी जुकाम हो जाता था। तो आज के डेट में जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, सर्दी जुकाम होता है, यहाँ मैं लोगों को देखता हूँ कि लोग तुरंत केमिस्ट के पास चले जाते हैं, दवाई ले जाते हैं, ठीक है, लोग क्योर हो जाते हैं। बट क्या है कि मेडिसिन का बहुत ज़्यादा यूज करना भी हमारे शरीर के लिए ख़तरनाक होता है। तो हम अपने पुराने समय को याद करते हैं, जब हमें जुकाम लगता था तो हमारी मदर हमारे सर पे शुद्ध सरसों का तेल लगा देती थी, और रात में हम सोते थे तो नाक में 2 ड्रॉप उसका डाल देती थी। तो मतलब उस समय थोड़ा सा तो नाक में तो ईचिंग होती थी, बट सुबह होते हमारा जुकाम हमारा गायब हो जाता था। या हमने ये भी देखा है, जो बॉर्न बेबी हमारे यहाँ बिहार में होते थे जैसे, तो उनको लोग क्या था कि अगले 1 साल तक जो मतलब घर में ग्रैंड मदर्स थीं या जो बूढ़े होते थे, वो उनको सरसों के तेल की ही मालिश करते थे। मैं उससे पूछता था कि आप ये क्या मालिश करते हो, क्यों करते हो? तो वो बोलते थे कि सरसों के तेल के मालिश करने से आपका बोन्स स्ट्रॉन्ग होता है, हेल्थ का अच्छा डेवलपमेंट होता है। और जब उनको कई बार क्या सर्दी खांसी बहुत होती थी ना बच्चों को, तो क्या करते थे कि रात में सोने समय तेल को गर्म करके और उसको उनके चेस्ट पे लेप के फिर कपड़ा पहना देते थे, तो सुबह तक उनका जुकाम गायब हो जाता था। तो मैंने देखा है कि इसका एक हेल्थ के भी व्यू से बहुत अच्छा है, आपको सर्दी खांसी हो। प्लस एक चीज़ और मैंने देखा था कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे ना, वो सर में सरसों का तेल ही लगाते थे। अब आज के डेट में देखोगे आप 40 इयर्स का होते ही लोगों के बाल सफ़ेद होने लगते हैं, क्योंकि लोग अब फ्रेगनेंस वाला तेल हो गया, ये तेल लगाते हैं, जेल लगाते हैं। बट ना जो ग्रैंड पेरेंट्स मैंने देखा था कि 80-90 इयर्स के ओल्ड के भी होते थे, बट उनके बाल सफ़ेद नहीं होते थे। तो मैंने देखा ना कि सरसों का तेल का जो यूज़ है ना, मस्टर्ड ऑयल का, वो खाने के अलावा बहुत कुछ में फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद घर में कोई भी पूजा पाठ हो रहा है, दिवाली आ रही है, तो आज के डेट में जितना पॉल्यूशन भी हो रहा है, आप मोमबत्ती जलाते हो, ये करते हो, अगर सरसों का तेल से आप घर में जलाते हो तो उससे एक पॉजिटिव एनर्जी भी आती है, पॉल्यूशन भी नहीं होता है। प्लस आप देखो जितने भी भगवान की पूजा होती है ना, वहाँ पे इसका एक रिलीजियस भी काफ़ी है कि सरसों का तेल जब चढ़ाते भी हैं शनिदेव को, उनकी पूजा भी करते हैं। तो मैं कहा कि एक चीज़ से हमारा जब म्यूचुअल चीज़ हमारा हो रहा है, पूजा पाठ भी हो रहा है, हेल्थ को भी फ़ायदा कर रहा है, और सर्दी जुकाम में भी फ़ायदा कर रहा है, तो क्यों ना हम इसको यूज़ करें। इंटरेस्टिंग, बहुत ही आपने बहुत ही विस्तार तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो आपको फॉर्च्यून रिफाइंड ऑयल को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना होगा तो आप उसको कैसे करेंगे? इट इज़ अल्टीमेट। बहुत अच्छा है, पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है, प्राइसिंग भी इसकी बहुत अच्छी है, और सब कुछ अच्छा है, इसमें कोई मतलब प्रश्न ही नहीं है कि इसकी में कुछ भी, मतलब बहुत ही अच्छा है ये। ओके, तो क्या आप प्रेफर करते हो, मतलब जब आप ऐसे ऑयल्स को, मतलब व्हेन यू ट्राई टू परचेज दी सॉर्ट ऑफ ऑयल्स, तो क्या आप जो है डू मेक श्योर कि लेबल्स जो हैं आप एक बार उनको अच्छे से चेक करते हो? बिकॉज आजकल का क्या है ना, इम्प्योरिटीज़ कहीं से भी आ सकती है। जैसे मैं फिटनेस में काफ़ी बिलीव करता हूँ, तो हमारे इधर वे प्रोटीन यूज़ होता है, तो बहुत सारे ब्रांड होते हैं वो थोड़ा सा सस्ता माल डाल देते हैं और प्राइस थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं ताकि उनकी प्राइस थोड़ी सी वो रहे। तो आपको क्या भरोसा रहता है कि विच द ब्रांड यू आर यूजिंग, या आपने जितने भी अभी यूज़ करे हैं, तो डू यू मेक श्योर दैट लेबल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दैट? आपकी बात सही है शिवम, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ब्रीफ कर दिया था ना कि इम्प्योरिटी का सवाल तब होता है कि जब मैं इसको छोटे स्टोर से ख़रीदूँ या किसी गली की दुकान से ख़रीद लूँ। जनरली मैंने देखा ना कि यहाँ पे मैंने कई बार देखा है कि कंपनीज की यहाँ पे डायरेक्ट सप्लाई होती है और ये बल्क परचेजिंग भी करते हैं, तो मेरे को कभी इनके पास डाउट नहीं हुआ।
इसलिए मैं कभी, और ऐसे भी मैं एक बार जब पैकेट्स उठा के, तो आपको पता है कि मेरे को शॉपिंग करने में बहुत मज़ा आता है। मैं डिफरेंट कंपनीज़ का रेट्स भी चेक करता रहता हूँ। तो मैं जब से यूज़ कर रहा हूँ ना, मुझे ऐसा कुछ भी डाउट नहीं लगा कि जो 5 साल पहले मैंने पैकेजिंग, हाँ बीच में एक बार इसका इन्होंने पैकेजिंग चेंज किया था, तो मेरे को डाउट हुआ था कि यार पहले, क्योंकि तो मुझे बाद में जो मैं इनके पास गया बिलिंग काउंटर पे, मैंने कहा कि ऐसा पैकिंग तो इसका पहले नहीं आता था, अब कैसे चेंज हो गया? तो बोले कि सर ये एवरी 3 ईयर 4 ईयर्स पे हर बड़ी कंपनियां क्या करती है, कुछ कलर्स में, कुछ उसमें ग्राफिक्स में चेंज करती है ताकि उनका डुप्लीकेट नहीं बन सके। तो फिर मैंने कहा कि आर यू श्योर? देन ही हैज़ शोन मी द ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर। तो मुझे लगा, तो फिर भी मेरे को थोड़ा सा, चूँकि ये थोड़ा सा सस्पिशियस होता है, पता है ना, रिफाइंड की मार्केट, घी की मार्केट में बहुत डुप्लीकेसी होती है। तो मैंने क्या किया ना, उस पर से मैंने डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर मैंने उठा लिया और मैंने उनको कॉल कर दिया कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, बताया अपने बारे में कि मैं आपका लॉयल कस्टमर हूँ एंड लास्ट 10 ईयर्स से मैं आपका परचेज़ कर रहा हूँ फॉर्चून वाइल्ड। अभी आपकी पैकेजिंग चेंज हो गई क्या, तो थोड़ा तो मैं आपसे कंफर्म करना चाह रहा था। तो ही वॉज वेरी मच हैप्पी आफ्टर नोइंग कि मैं 10 ईयर्स से उनका वो कर रहा हूँ। और मैंने उनको पर्सनली कॉल किया ये जानने के लिए कि मतलब ये डुप्लीकेट है कि नहीं है। तो तब तक मेरे पास ये बड़े वाला फ़ोन आ चुका था। तो मैंने कहा आप मुझे कैन यू शेयर मी द पिक्स ऑफ द ओरिजिनल पैकेट्स। तो उन्होंने मुझे उसका एक फ़ोटो भेजा, फिर मैंने कंपेयर किया तो बोथ आर सेम। तो मैंने कहा थैंक यू सर। उसके बाद फिर मैंने उनसे पैकेट ले लिए। वैसे मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि आप सीए होने के साथ साथ एक काफ़ी इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर भी हैं, एंड आई थिंक आपको थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना चाहिए सोशल मीडिया के थ्रू कि ये सॉर्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन बढ़ाए। बिकॉज आजकल इंडिया में ऐसे चलता है, एटीट्यूड होता है, एंड ज़्यादा लोग बॉदर नहीं करते हैं इसके बारे में। तो दैट इज़ समथिंग वेरी गुड अबाउट यू, दैट यू हैव डीप कंज्यूमर नॉलेज, कंज्यूमर राइट्स के आपको एक काफ़ी अच्छी नॉलेज है, एंड यू मेक श्योर कि जो आप ले रहे हो दैट इज़ benefiting your not only you but your family as a whole. That is very nice of you. आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने ये डिसीजन लिया या जब आप डिसीजन लेते हो, आपने बोला जैसे हर संडेज़ को आप एक दिन पहले डिनर पे, अपनी सैटरडेज़ को अपनी वाइफ को बोलते हो कि हमें शॉपिंग पे जाना है, तो आप तो जब आप शॉपिंग की बात करते हैं तो आप बोलते हो कि मेरे को ये ऑयल ख़रीदना है, तो उस टाइम पे आप किन किन को कंसल्ट करते हो? क्या ये आपका खुद का डिसीजन होता है कि या आप सबको फैमिली को एज अ फैमिली को कंसल्ट करते हो? नहीं शिवम, मैंने आपको ये बताया ना कि जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने अपने वाइफ से कंसर्न, मतलब उन्होंने जब पर्चा बनाया तो उन्होंने मस्टर्ड ऑयल लिख दिया था। उनको लगा कि जैसे बिहार में मिलता है लूज़ तेल अपना कोल्हू का, यहाँ भी होता होगा, बट मैंने उनको कहा कि ये फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं जो पीछे से भी फॉर्चून यूज़ करता आ रहा हूँ, मैं एक बार ले कर आता हूँ और आप देख लो, आपको लगता है कि कुछ और चेंज करना, तो वो बोले कि आप एक काम कर सकते हैं, हम एक ब्रांड कोई और लेके देखते हैं। और उसको भी दोनों का एक, चूँकि घर में लगभग 2-3 लीटर तेल तो हमारा लग ही जाता है, तो हमने एक और पैकेट, अब मुझे याद नहीं आ रहा है, सॉरी टू से, वो भी एक लीडिंग ब्रांड ही था, बट मैं लेके आया। तो फिर पहले मैंने वाइफ को कहा कि आप एक काम करो, आपने फॉर्चून नहीं खाया तो आप दोनों पैकेट्स खोलो। सुबह का जो दिन का लंच है, उस दिन संडे ही था, मैं घर पे ही था, ऑफिस नहीं गया था, तो आप दिन का लंच आप इसमें बनाओ। और थोड़ा सा आपको पता है हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, हम लोग नॉनवेज थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं, तो हमने कहा कि आप ना एक में आप वो बनाओ और एक में वो बनाओ, नॉनवेज बनाओ, आपको टेस्ट किस में पसंद ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो फिर उन्होंने दोनों का बनाया, रात का डिनर भी बनाया, दिन का लंच भी बनाया। तो मैंने देखा, तो भाई मैंने उनसे पूछा कि कौन सा आप किसको बेटर देते हो रेटिंग, तो सी हैज़ टोल्ड कि नहीं फॉर्चून तो मेरे को ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो मैंने कहा कि अब ठीक है, ये अच्छा ब्रांड भी है, और फिर हम उसको यूज़ करने आए। फिर मैंने उनको बताया भी कि एक अच्छा बिजनेस हाउस है, बड़ी कंपनी है, तो जनरली इनमें मतलब ये लोग ज़्यादा क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे भी पता है मैं सीए हूँ, बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसे भी मैं ऑडिट में जाता हूँ। तो जनरली जब मैं उनके ऑफिस में जाता हूँ बैलेंस शीट वगैरह के लिए, तो उनके जो बड़े ऑफिसर्स हैं, तो मेरा थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट भी है, तो मैं बोलता हूँ मुझे वो प्लांट एक बार दिखा दो।
तो वो लोग जब प्लांट घुमाते हैं तो मैंने ये देखा है ना कि जो बड़ी कंपनी है ना उनका क्वालिटी कंट्रोल बहुत स्ट्रांग होता है और कहीं पे मतलब हाथ से टच नहीं करते हैं, 100% ऑटोमेशन पे काम करते हैं। तो फिर मुझे लगा कि मतलब यहाँ पे क्वालिटी से ये लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते होंगे और दे आर सेलिंग इन वेरी लार्ज स्केल। तो फिर मैं कहा कि इस पे और कोई डाउट नहीं है, आप यू कैन यूज़ इन फ्यूचर इट। अगेन आपने प्रूव कर दिया है टू द टेस्ट लेवल दैट यू हैव वेरी गुड कंज्यूमर इनसाइट्स, मतलब कंज्यूमर नॉलेज आपका काफ़ी अच्छा है। तो इज़ इट सेफ टू से कि आपके पास जो है यू हैव द फाइनल से व्हेन इट कम्स टू डिसाइडिंग कि हमें ये ही प्रोडक्ट लेना है? नहीं, डिसाइडिंग में क्या है कि हमारा म्यूचुअल होता है। हम जैसे तेल के अलावा और भी सामान खरीदते हैं, जैसे वाइफ का कॉस्मेटिक्स वगैरह हो गया, तो उसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं होता है क्योंकि वो उनका चॉइस है। मैं कॉस्मेटिक्स उतना यूज़ नहीं करता हूँ तो वो अपना यूज़ करती हैं। लाइक बच्चे हैं, मैं उनको जनरली उनका भी चॉइस होता है, जैसे आजकल मैगी खाना है, पास्ता खाना है, मैकरोनी खानी है, हाँ, और जैम्स खाना है, सॉसेस वगैरह खाने। तो मैं जनरली उनको थोड़ा सा ये ज़रूर गाइड करता हूँ कि बेटा जंक फूड थोड़ा सा कम खाया करो, टेस्ट के लिए खाया करो। कभी कभी ठीक है, रोज़ की रोटी सब्जी खा के आदमी बोर हो जाता है, बट क्या है इसको हैबिट में मत लाओ। हाँ, उसमें भी अगर जंक फूड तो थोड़ा सा वो बोलते हैं कि मुझे मैगी खानी है या पास्ता खाना है, तो उसमें आप अगर शॉप्स पे जाओगे ना तो आपको कई सारी वैरायटी मिल जाएंगी। लाइक आज के डेट में कई सारे अनब्रांडेड भी हैं जिनमें कंपनी का नाम नहीं लिखा होता है, वो काफ़ी सस्ता बेच देते हैं। तो मैं उसमें प्रेफर करता हूँ कि जो टॉप कंपनियाँ हैं, लाइक मैगी वगैरह, मैगी हो गया, नेस्ले का हो गया, पास्ता वगैरह में आपका बॉम्बिनो हो गया, जो लीडिंग ब्रांड्स हैं, तो मैं कहता हूँ कि फिर आप ये लो। तो बाकी जो स्टेशनरी वगैरह हो गई, तो आज की डेट में पता ही है आपको, बच्चे क्लासमेट का ही यूज़ करते हैं, तो फिर उसमें मैं, हाँ, ये है कि बाकी मतलब कंसेंट देता हूँ और उनको ऑलवेज गाइड करता हूँ कि जो भी सामान खाओ हेल्दी खाओ, अच्छा खाओ और ब्रांडेड कंपनी का खाओ। Nice, very well explained. How often do you recommend this Fortune refined oil to your friends, extended family members, workplace में जो आपके colleagues हो गए, juniors हो गए? हाँ, जनरली आपको मैंने बताया ना कि जब जिन दिनों में स्टडी कर रहा था, जब मैं इस पर काफ़ी पढ़ रहा था, जब मैं मस्टर्ड ऑयल से रिफाइंड पे शिफ्ट किया था बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द मस्टर्ड ऑयल इन द ब्रांडेड कंपनी इन दिल्ली मार्केट, तो फिर मैं उस समय अपने दोस्तों से, उस समय हम 5-6 फ्रेंड थे जो हम इकट्ठे रहते थे और सब लोग उसमें कोई सीएस कर रहा था, कोई सीए कर रहा था, कोई मैनेजमेंट की तैयारी कर रहा था, तो हम आपस में बातें करते थे। तो जब हम उस पर शिफ्ट हुए फॉर्चून ऑयल में, तो फिर धीरे धीरे हम वीकेंड्स पे, संडे को हमारे फ्रेंड्स इकट्ठा होते थे, फिर हमने उनको भी काउंसिल किया, उनको भी बताया, उसके बाद वो लोग उसको यूज़ करने लगे और उनको भी लगा कि हाँ, पंकज ने या जो हमारे फ्रेंड्स ने आपस में हमने डिसाइड किया दैट इज़ ए गुड डिसीजन। अब शादी हुई, उसके बाद हम भी पार्टी वगैरह में जाने लगे, तो यार लोग हमारे यहाँ आते थे खाने के लिए, बर्थडे पार्टी पे, मैरिज उस पर, एनिवर्सरी पे या कोई फेस्टिवल्स पे। जनरली चूँकि ये पता है बिहार से है तो कोई यहाँ पे, तो हम वीकेंड पे घर पे थोड़ा हम लोग भी लोग को इनवाइट करते हैं। तो हम जब अपने घर में खाना बनाते थे तो लोग पूछते थे कि आपकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है या आपका नॉनवेज बहुत अच्छा बना है, क्या यूज़ करते हो। लोगों को लगा कि आप कोई मतलब कौन सा मसाला यूज़ करते हो, तो हमने कहा कि ये तो करते ही हैं। बाकी बोले कि तेल कौन सा यूज़ करते हो, तो मैंने कहा कि हम फॉर्चून मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं। तो बोले अच्छा, ये तो बहुत अच्छा सब्ज़ी बना है, नाइस रेसिपी, हम भी घर में जाके एक बार ट्राई करते हैं। तो धीरे धीरे करते करते ना, अब मैं जनरली देख रहा हूँ, मैं जिस भी फ्रेंड्स के यहाँ जाता हूँ, लास्ट 10 to 12 ईयर्स में कई बर्थडे पार्टी में गया, पार्टी में गया, तो मैं देख रहा हूँ कि सबके किचन में आज के डेट में जनरली मैं तो फॉर्चून ही देखता हूँ। या फ्रेंड्स भी आपस में हम लोग बातें करते हैं, वो कहते हैं पंकज यार हमने जो आपस से बात करी थी, तो वो लोग भी आगे, फिर जो कुछ हमारे फ्रेंड हैं उनके फ्रेंड हैं जो हमारे फ्रेंड नहीं है, तो वो लोग भी वहाँ पे जाते हैं, तो जनरली चीज़ें शेयर हो जाती हैं। तो मतलब ऑलमोस्ट जहाँ तक वो लोग पूछते हैं तो हम उनको ज़रूर प्रिस्क्राइब करते हैं और लोग उस पर सेटिस्फाई हो रहे हैं। कुकिंग जो है एक बड़ी सब्जेक्टिव आर्ट होती है जिसमें शेफ़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल होता है, मतलब शेफ़ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट एज वेल। तो डू यू थिंक, मतलब आई वोंट से डू यू थिंक, लाइक क्या आपको लगता है कि
फॉर्च्यून रिफाइंड ऑयल से सच में खाने का जो टेस्ट है वो एनहांस हो जाता है कि? और एनहांस इसलिए हो जाता है ना कि मैंने इसमें जैसे अपनी वाइफ से भी बात करता हूँ। अब जैसे उसको खाने पीने का बहुत मतलब बनाने का शौक़ है, तो पहले वो तो अपने कुछ घर से सीख के आई थी वो खाना पीना बनाना वो। और उसके बाद जब आज की डेट में आप देख रहे हो कि यूट्यूब का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है, बहुत सारे लोग अब क्या है कि पहले घर में सामान्य खाना बनता था, या कोई त्यौहार आ गया तो पनीर बन गया, सेवई बन गई, खीर बन गया, छोले बन गए। अब क्या है कि फिर लोग कभी कभी पहले रेस्टोरेंट में खाना खाने जाया करते थे, लाइक शाही पनीर हो गया, मलाई कोफ्ता हो गया, डिफरेंट हो गया, या फिर चाइनीज़ फूड हो गया, थाई डिश हो गया, ये सब हो गया। तो वो सब लोगों को घर में पहले बनाना नहीं आता था। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जब बाहर खाने का प्रचलन बढ़ गया, तो फिर लोगों को ये खासकर जो हाउस वाइफ्स है ना, उसके बाद फिर अब उस समय ये पॉसिबल नहीं था कि आप रेस्टोरेंट में जाके शेफ से पूछोगे आपने कैसे बनाया, क्या बनाया, नहीं बनाया। तो फिर एक बीच में बड़ा, अभी आपको देखा यूट्यूब का काफ़ी अच्छा प्रचलन आ गया है। यू कैन मतलब आप उसमें कुछ भी देख सकते हो, क्वेश्चन टाइप कर दो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो यूट्यूब पे हमारी वाइफ अलग अलग रेसिपी का वो देखने लगी कि उस पर वो खाना कैसे बनता है, नहीं बनता है। तो वो भी ये देख रही थी ना कि मतलब वो दिखे कि 80% फूड्स में जो शेफ़ वगैरह होते हैं, या जो कई लोग अपना घर में जिनको बहुत शौक़ है खाना पीना बनाने का, लोग अपना यूट्यूब पे अपना चैनल बना रहे हैं, लोग उस पर डालते हैं अपना वो बढ़ाने के लिए अपना सब्सक्रिप्शन। तो फिर वो देखा कि 80% जो लेडीज़ वगैरह है ना, वो मतलब उसमें मस्टर्ड ऑयल ही डालती हैं, और 60% केस में देखा कि उन्होंने फॉर्चून यूज करती हैं। और नॉनवेज में तो उन्होंने जने थे, खासकर फ़िश आप अगर बनाओ मस्टर्ड ऑयल में तो उसका स्वाद ही अलग होता है। तो फिर उन्होंने देखा कि मतलब उन्होंने मुझसे शेयर भी किया है कि मैं जितने भी यूट्यूब चैनल्स देखे हैं ना, उसमें 60% में मस्टर्ड ऑयल में फॉर्चून ही यूज होता है। तो मैंने कहा कि दैट्स वाई इट इज़ अ वेरी ऑथेंटिक ब्रांड। इंटरेस्टिंग, आपने काफ़ी अच्छा इंसाइट दिया है। तो अभी हम लोग बात करते हैं यूट्यूब की। तो आजकल जैसे मैं मार्केटिंग का स्टूडेंट हूँ, तो देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जहाँ पे जैसे कोई XYZ सेलिब्रिटी आके बोलता है कि जैसे पान मसाला ले लो, अक्षय कुमार बोलता है विमल पान मसाला खाना चाहिए, तो बहुत सारी ऑडियंस उसकी तरफ जाती है। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए, जैसे कोई आपका फेवरेट सेलिब्रिटी कोई भी हो, या जैसे मनोज बाजपेयी हो फॉर एग्जांपल, वो बोलते हैं कि कोई आपके कॉम्पिटिटर का ब्रांड बोलते हैं, जैसे धारा का कोई फॉर्च्यून का कोई जो है कॉम्पिटिटर ब्रांड को प्रमोट करते हैं, तो क्या आप स्विच करोगे? देखिए, अब लास्ट 10 to 15 ईयर्स से मैं फॉर्चून यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। कोई अगर मैं यूट्यूब देखता हूँ, वाइफ देखती है, बच्चे देखते हैं, अगर मान लो कि वो एक बार दो बार आ रहा है तो ठीक, मतलब फिर नहीं, लेकिन बार बार उसका ऐड दे रहा है, या फिर डिफरेंट उसके ओपिनियंस आ रहे हैं, या हम देख रहे हैं कि कुछ सैप्स उसको क्योंकि सिर्फ एडवर्टीजमेंट करना और उसको यूज करना बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। अगर हम फिर देखते हैं कि यूट्यूब पे किसी ने उसको यूज किया, उसके अच्छे रेटिंग्स आ रहे हैं, तो मैं कभी एक बार ट्राई कर सकता हूँ। बट मुझे नहीं लगता है कि मतलब अगर मेरे को यहाँ पे सब कुछ अच्छा मिल रहा है तो फिर मुझे ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स नाइस, आपने अगेन एक बार प्रूव कर दिया कि आपकी कितनी अच्छी कंज्यूमर नॉलेज है। सो आपने बात करी थी शुरू में कि आप जैसे मॉडर्न फॉर्मेट स्टोर्स पे प्रेफर करते हैं टू परचेज योर गुड्स। तो ऐसा क्या है मॉडर्न फॉर्मेट स्टोर्स में दैट यू ऑलवेज लाइक टू शॉप फ्रॉम देयर एंड स्पेसिफिकली दिस प्रोडक्ट? और मैंने आपको शिवम ये बताया कि मॉडर्न फॉर्मेट स्टोर में एक तो क्या है ना कि यहाँ पे मेरे को घर का सारा सामान मिल जाता है। इवन कॉस्मेटिक्स हो गया, डेट्स हो गए, साबुन सर्फ हो गया, अपना राशन का सामान हो गया, स्टेशनरी हो गया, बच्चों के टॉयज़ भी हो गए, और प्लस कहीं जाओगे तो आपको जो अपना ये होता है होजरी आइटम्स भी रखते हैं। तो मेरे को हर बार अलग अलग शॉप पे नहीं जाना पड़ता है। प्लस एक यहाँ पर ये भी है कि दे आर ऑफरिंग इन प्रोडक्ट्स ऑन द वेरी डिस्काउंटेड प्राइस। ऑफ़र भी यहाँ पे होता है, ऑफ़र अपडेट भी होता है, प्लस स्टॉक की फ्रेशनेस रहती है, सेल्फ लाइफ में होता है, आपको ढूंढना नहीं पड़ता है। बिकॉज ऑफ दिस आई यूज। और उसके बाद
ये लोग जो क्या होता है कि यहाँ पे पेटीएम हो गया आपका ये मतलब जो इनके स्वाइप मशीनें होती हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, गूगल पे, ये सब कुछ ये लोग ले लेते हैं। अब आज के डेट में कैश हैंडलिंग भी इतना करना बड़ा मुश्किल होता है। अब मान लो मैं अपने घर का राशन का सामान लेने जा रहा हूँ, इट्स अबाउट 10,000 to 11,000 रुपीज़, एंड इसके लिए आज की डेट में मतलब इट्स वेरी हार्ड टू कि आप एटीएम पे जाओ, लाइन लगो, 11,000 रुपये निकालो, फिर जाके आप उसको वहाँ दो। तो फिर इसलिए मैं जनरली यहाँ पे आता हूँ और यहाँ इनसे अपना सामान लेता हूँ। प्लस जो फेस्टिवल्स आते हैं, दुर्गा पूजा, नवरात्रि हो गया, होली हो गया, उस समय ये लोग बहुत अच्छा ऑफ़र भी देते हैं। और यहाँ पे और स्टॉक की फ्रेशनेस और हाइजीन यहाँ पे होता है। बिकॉज ऑफ डैट आई ओनली प्रेफर मॉडर्न फार्मर स्टोर्स एंड such kind of big stores. Nice, very well explained answer again. जैसे आपने बोला कि आप मॉडर्न फॉर्मेट स्टोर से ही सामान लेते हो, तो अगर ऐसे कोई सिचुएशन आई जैसे आपके प्रेफर्ड मॉडर्न फॉर्मेट स्टोर पे ये फॉर्चून का रिफाइंड ऑयल अवेलेबल नहीं होगा, तो क्या आप क्या करेंगे? देखिए, जनरली आज जब से मैं परचेज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, एक्चुअली में ये स्टोर तो अभी 2-3 साल पहले आपने देखा, काफ़ी अच्छी जगह है, वर्ल्ड स्ट्रीट। ये आज की डेट में एक मतलब यहाँ पे लोगों का बहुत अच्छा, चूँकि बहुत यहाँ पे ओपन स्पेस है, लोग आते हैं, खुली जगह में शॉपिंग करते हैं। तो इसके पहले मैं सेक्टर 15 हो गया, 16 में भी अच्छे अच्छे स्टोर्स बने हुए हैं। यहाँ पर रिलायंस का मॉल है, मैं उससे परचेज करता था। तो मैंने आज तक मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि कभी मुझे फॉर्चून तेल यहाँ पे नहीं मिला होगा। मिलता ही मिलता है, मतलब मुझे याद नहीं कि कभी यहाँ पे स्टॉक कम रहा हो। अगर मान लो मेरी मंथली बाइंग 3 लीटर्स की 4 लीटर की है, सडनली 2 पीस है तो मैं 2 पीस ले लेता हूँ। लेकिन मेरे को ऐसा कभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि यहाँ पे फॉर्चून मस्टर्ड ऑयल नहीं मिला हो। इंटरेस्टिंग। तो आपने बात करी थी प्रीवियस आंसर में ऑफर्स के बारे में, और अभी आपने ऐड ऑन करा था उससे कि आपने पहले जो है इस स्टोर पे जाने से पहले आपने सेक्टर 15 और सेक्टर 16 के काफ़ी सारे स्टोर्स ट्राई करें। तो अगर हम प्राइस पॉइंट पे कंपैरिजन करें तो विच वन डू यू फाइंड मोर लुक्रेटिव, मतलब जो आपके बजट को सूट करता है? इज़ दिस द वन वेयर यू आर परचेजिंग राइट नाउ और द 15 और सेक्टर 16 स्टोर्स? हाँ, एक्चुअली में क्या है कि आपको बता दूं मैं कि 15-16 से पहले मैं परचेज करता था, तो जो मेरे घर से नियर अबाउट 4 to 5 किलोमीटर्स था। तो उसके लिए गाड़ी लेके जाना, फिर थोड़ा सा पता ही है आपको, वीकेंड्स पे ट्रैफिक भी बहुत हो जाती है और पार्किंग की भी समस्या होती है, गाड़ी लेके जाना। ये मॉल है हमारे घर के बगल में खुल गया है और नियर अबाउट 1 किलोमीटर है, और यहाँ पे मेन पार्किंग की समस्या नहीं है। और जनरली जो मैंने ऑफ़र्स वगैरह देखे थे ना, वो लगभग मोरलेस सेम ही रहते हैं। उल्टा अगर थोड़ा कम भी है तो फिर मेरा फिजिकल हरासमेंट भी नहीं होता है, पार्किंग में गाड़ी लगाना, आना जाना, ये, और यहाँ पे मैं आता हूँ मैं। So from your answer it is safe to say कि convenience is one main factor that motivates you to buy from where you are buying right now. Yeah, that is something which we all have that tendency in mind, क्योंकि अगर कोई मेरे को भी ऐसे जैसे कोई प्रोटीन लेने जाना होता है तो मेरे घर के सामने ही दुकान है, प्रेफर गोइंग दैट। अगर जैसे कभी आपने ऑनलाइन स्टोर्स पे ऐसे सोचा है कि मैं कभी अमेज़ॉन पे या ब्लिंकिट से कभी जो है इस फॉर्चून रिफाइंड ऑयल को ऑर्डर करूँगा? एक्चुअली मैं क्या ना आपको बताया था कि मुझे थोड़ा सा ना ऑनलाइन शॉपिंग मुझ में करने में उतना मज़ा नहीं आता है। बिकॉज ऑफ डैट कि एक तो उसमें पहले अपना आप कोई ऐप डाउनलोड करो, उसके बाद क्या फिर आप कार्ट बनाओ, कार्ट में फिर आप एक एक सामान ऐड करो। अब ऐड करो ठीक है, मैं जब राशन का पूरा सामान लेने जाता हूँ तो आई वर नॉट गोइंग ओनली फॉर परचेज द फॉर्चून मस्टर्ड ऑयल। मैं अपने घर का पूरा सामान खरीदता हूँ, ठीक है। कई सारे ऐसे सामान होते हैं जो मैं लूज़ भी लेके आता हूँ, जैसे मतलब जो राइस हो गया, पल्सेज हो गया, राजमा हो गया, छोले हो गए। तो उसमें क्या होता है कि फिर इनमें मैं जाऊँगा कार्ट बनाने में मुझे बहुत समय लग जाता है, 1 घंटे का। फिर उसके बाद और कंपनी का ऑफ़र, उसमें उनके पास जो अवेलेबल होता है वही दिखाते हैं, वो जो उनके पास एट प्रेजेंट अवेलेबल है वही दिखाएंगे।
और फिर उसके बाद उनको वो करो, फिर वो घर पे दे के जाएगा। मान लो घर पे दे के आ रहा है, घर पे मैं हूँ नहीं हूँ, वीकेंड्स है, मैं बाहर जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ। और यहाँ पे क्या होता है, शॉपिंग थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट भी है, आपको पता है मैं थोड़ा सा डिफरेंट कंपनीज का प्राइसिंग वगैरह, ग्रामेज वगैरह, उसमें फैट कंटेंट्स कितना है, प्रोटीन लेवल कितना है और सब्जी में, तो वो नॉलेज मेरे को ई कॉमर्स साइट पे नहीं मिल पाती है। यहाँ पे क्या है कि एक थोड़ा सा मेरा टाइम पास हो जाता है और 1 घंटे में वॉकिंग, घर की आउटिंग भी हो जाती है। मैं बच्चों को भी साथ में कई बार लेके जाता हूँ, वो भी अपनी मनपसंद के सामान खरीद लेते हैं। तो फिर और प्लस यहाँ पे सारी जानकारी मिल जाती है, नॉलेज, तो इसलिए मैं इसी को प्रेफर करता हूँ। नाइस। वैसे जैसे लाइक अ टिपिकल मिलेनियल जो जनरेशन होती है, बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर है आपका। तो जैसे हम अपनी बात करते हैं जैसे जेन जी, तो हम लोगों को ज़्यादा ये ऑनलाइन सूट करता है, बिकॉज हमें क्या है, हम थोड़े लेज़ी टाइप के लोग होते हैं। सो इंटरेस्टिंग। सो मैं तो ऑब्वियसली एंड हाँ, एक और चीज़ आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, मतलब टेल यू एज सच कि ये जैसे ब्लिंकिट वगैरह होता है, इसमें लिमिटेड ही आप क्वांटिटी में ऑर्डर कर सकते हो, है ना, वो भी होता है। लाइक आई रिमेंबर आई वाज परचेजिंग वंस, तो नेस्ले माइलो का, तो ब्लिंकिट पे आ रहा था यू कैन ओनली ऑर्डर नॉट मोर देन 3। सो दिस इज अनदर प्रॉब्लम विच ई कॉमर्स हैव। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, how would you rate Fortune refined oil vis-a-vis the brands you have used on the following parameters? पहला हो गया पैकेजिंग। पैकेजिंग पे नंबर 1। वाई सर? वाई की इसका बहुत स्मूथ पैकेजिंग है और इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि उन्होंने उसका भर नहीं रखा है, और प्लस जो इसका प्रोडक्ट है वो ट्रांसपेरेंट होता है, हम उसको देख सकते हैं। लाइक आप कई सारा ऐसे, मान लो आप रिफाइंड ऑयल लेने जा रहे हो, तो यू कांट सी कि इसके अंदर में किस कलर का है, क्या उसका टेक्सचर है, कैसा, इसमें क्या पूरा विजिबल होता है। आप देख सकते हो कि जो हमें पता है कि मस्टर्ड ऑयल का जो लुक ब्राउनिश होता है या थोड़ा डीप येलो होता है, वो इसमें दिखता है। नेक्स्ट पैरामीटर इज प्राइस। प्राइस भी इसका अच्छा होता है। आप देखोगे जो उस पर MRP लिखी होती है, मोरलेस आप यहाँ पे सेल्फ पे जितने सारे प्रोडक्ट्स देख रहे हो ना, मोरलेस सबकी प्राइसिंग यही होती है। तो फिर अगर प्राइस सेम है तो फिर मुझे कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट है क्वालिटी। जैसे आपने पहले ही क्वालिटी के बारे में बहुत कुछ बोला है। सो इफ़ इन 1 line यू हैव टू समराइज क्वालिटी, तो कैसे आप उसको समराइज करेंगे? समराइज सर, इसका क्वालिटी ये है कि जो भी मैं इसका फूड खाता हूँ ना, रेसिपी घर में बनती है, दैट इज ऑसम एंड डिलीशियस। एंड लास्ट इज टेस्ट। टेस्ट इज ऑल्सो ऑसम, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ठीक है। सो सर, इज़ देयर समथिंग एल्स विच यू वुड लाइक टू शेयर जो मैंने आपसे मतलब पूछ नहीं पाया हूँ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? नहीं शिवम, आपने मुझसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे ना, बहुत अच्छा लगा। और मुझे ये अच्छा लगा कि आपको भी जो मैं आपसे बोल रहा था, तो आप उसको बहुत ध्यान से सुन भी रहे थे, नोट डाउन भी कर रहे थे। और मुझे लगा कि आप ये इंटरव्यू के अलावा, मुझे ऐसा लगता है कि आगे घर में जाके आप भी फॉर्च्यून मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करेंगे। एंड नाउ यू आर फुल्ली कन्विंस्ड। या वैसे मैं आपको बताता हूँ एक इनसाइट। तो हमारे घर पे अभी जो है मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ हो रहा था, बट किसी और ब्रांड का हो रहा था, बट वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। आई डोंट नो, पता नहीं वो मेरे बॉडी पे बैठा नहीं, तो मैंने काफ़ी घर पे सीन कर दिया था बोल के कि इसको हटाओ। तो अब तो हमारे घर पे घी यूज़ होता है, बट डेफिनेटली आई विल वाउच फॉर दिस प्रोडक्ट once I am back at home. So thank you so much sir for taking your time out. I think काफ़ी लंबा हो गया, it was scheduled to be of like half an hour, but उससे थोड़ा extend हो गया है. But thank you so much sir, it was a pleasure meeting you. Thank you. Looking forward sir. Thank you.